Good morning, student. Myself Chirag Sukhani from Rockville BBA College, Vapi, and I'm going to teach a fundamental of economics subject. So today in this session, we will start the next chapter, that is chapter number 3, that is cost and revenue analysis. Okay, so chapter number 3, it is divided into two parts, that is cost analysis and the revenue analysis. Okay, now first of all, cost. What is cost? Whenever the firm produce a product, the firm have to pay certain cost. That is cost of raw material, then wages to labor, interest on capital. So these are the cost. So we have to learn cost basically from the production cost. Likewise, revenue कब मिलेगा? Whenever firm selling the product. ओके जब भी फर्म ने प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लिया, वो मार्केट में सेल करेगा, तो फर्म को क्या मिलेगा? रिवेन्यू मिलेगा. सो कॉस्ट इज इनकर्ड व्हेन द फर्म प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट एंड रिवेन्यू इज जनरेट व्हेन द फर्म सेल द प्रोडक्ट. ओके, सो चैप्टर नंबर 3 हम लोग को पढ़ना है, दैट इज कॉस्ट एनालिसिस एंड रिवेन्यू एनालिसिस. सो टुडे इन दिस सेशन वी विल स्टार्ट द थर्ड चैप्टर, दैट इज पार्ट ए, कॉस्ट एनालिसिस. Clear? चलो first of all, what is cost or some introduction of this cost analysis. First of all, we all know that in business economics, cost is very important from the producer's point of view. Now what is who is producers? आपको पता है ना कि producers are those who produce the product. So cost basically किसके लिए ज़्यादा important है? From the producer's point of view, because in producing the commodity, firm has to engage service of the various factors of production. Now here factors of production आपने पढ़ा है. Okay, so कौन सा factors of production? Broadly, that is land, labor, capital and entrepreneur. So फर्म क्या करता है कि जब भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, वो टाइम पे firm engage the service of various factors of production, that is land, labor, capital, entrepreneur and so on. Now these factors have to be compensated by the firm for their efforts made in producing the commodity. Now compensation means what? Rewards pay करना है. Suppose आपने लैंड को यूज़ किया है, so according to their efforts we have to pay rent on land. Okay, suppose मैंने लेबर को यूज़ किया है, so according to their efforts I have to pay the wages to labor. Suppose मैंने कैपिटल बैंक से लिया है, लोन्स बैंक से लिया है, so I have to pay the interest on loan. Okay, raw material यूज़ किया है, so I have to pay the price of the raw material. So these are what? Certain cost. ओके, इट मीन्स जो भी फर्म ने फैक्टर सर्विस यूज किया है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, देन these factors have to be compensated by the firm. These factors have to be rewarded by the firm in the form of factor price. This is generally called as what? Cost. Okay, in the form of factor price it is generally as what? Cost. It means जो लैंड के ऊपर रेंट पे होता है, ओके, लेबर को वेज रेट पे होता है, कैपिटल को इंटरेस्ट पे होता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट पे होता है, ओके, एंड अदर फैक्टर सर्विसेज का कॉस्ट पे किया जाता है. सो ऑल दिस इज टर्म दैट इज व्हाट? फैक्टर प्राइस. This is term is what? Factor price. And this factor price, it is generally referred to as what? Cost. It is generally referred to as what? Cost. Okay, so cost of production of a commodity is what? Aggregate price paid to the factors of production which is used in producing the commodity. Now aggregate यानी total. Okay, so cost of production क्या होता है कि टोटल प्राइस विच इज पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉस्ट. क्लियर एवरीवन? सो कॉस्ट इज नथिंग बट एग्रीगेट प्राइस पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन in order to produce a product. This is known as what? Cost.
Okay, and factor price यानी generally rent, wages, interest, capital, then cost of the input, any other input, that is called considered as what factor price. This is generally termed as what cost. Clear? चलो next question, various cost concept. Various cost concept. Now earlier syllabus में बहुत टाइप के cost concept थे, बट आपके सिलेबस में स्पेसिफिक दे दिया, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रियल कॉस्ट एंड मनी कॉस्ट. ओके, चलो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. फर्स्ट कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप लोग ने गुजराती मीडियम या हिंदी मीडियम में भी पढ़ लिया होगा. दैट इज व्हाट वैकल्पिक खर्चा. वैकल्पिक खर्चा बोला जाता है. दैट इज व्हाट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. So what is opportunity cost? कि opportunity cost of any commodity is what next best alternative commodity that is sacrificed or forgone. समझना अच्छे से कि opportunity cost of any commodity is what next best alternative commodity that is sacrificed or forgone. मतलब I as a producer मैंने एक कॉमोडिटी सिलेक्ट किया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, एक कॉमोडिटी को प्रोड्यूस किया और मैंने दूसरी कॉमोडिटी को सेक्रीफाइस किया, दूसरी कॉमोडिटी को फॉरगो किया. दैट इज व्हाट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनी कॉमोडिटी इज व्हाट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कॉमोडिटी दैट इज सेक्रीफाइस और फॉरगॉन. यानी हम लोग एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो दूसरे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना भूल जाएंगे. दैट इज व्हाट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सपोज जनरल टर्म में कि आपके पास आपको बीबीए आपको ग्रेजुएशन करना था, सो आपके पास अलग अलग अल्टरनेटिव्स थे. दैट इज बीबीए, बीकॉम, बीसीए. सो आपने सिलेक्ट किया बीबीए, सो आपने दूसरे कोर्स को क्या किया, फॉरगो किया. दैट इज व्हाट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्लियर? सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनी कमोडिटी इज व्हाट next best alternative commodity that is sacrificed or forgone. It means production of one commodity involves sacrifice of the production of something else. Okay, so suppose I as a producer, मेरे पास दो ऑप्शन था, मैं टेबल भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ और चेयर भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ. So I as a producer I select first option that is production of table. तो मैंने सेक्रीफाइस किसको किया, प्रोडक्शन ऑफ चेयर. दैट इज व्हाट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्लियर? सो यहाँ पे एग्जाम्पल समझो. द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कार में ऑल्सो बी यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मशीनरी. यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. दैट इज व्हाट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो सेम लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सब सेम यूज किया. नाउ दीज फैक्टर्स कैन प्रोड्यूस आइदर कार और मशीनरी. कार भी प्रोड्यूस कर सकता है और मशीनरी भी प्रोड्यूस कर सकता है. नाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार, प्रोडक्शन ऑफ कार, तो मैंने फॉरगो किसको किया, सेक्रीफाइस किसको किया, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ मशीनरी. ओके, सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार इज व्हाट output of machinery, production of machinery which is foregone or sacrifice. Clear? Now another example जो cost के साथ related है ना, so ये amount वाला एक example. Suppose businessman can either buy lathe machine or paper pressing machine विथ इज लिमिटेड रिसोर्सेज. यानी एक बिजनेसमैन है, उसके पास दो ऑप्शन है, आइदर वो लैथ मशीन परचेज कर सकता है या आइदर वो पेपर प्रेसिंग मशीन परचेज कर सकता है. नाउ ही कैन अर्न एन्युअली 50,000 एंड 70,000 रिस्पेक्टिवली. यानी लैथ मशीन से 50,000 जनरेट हो सकता है एंड पेपर प्रेसिंग मशीन से 70,000 रुपीज मिल सकता है. ये उसका एक्सपेक्टेशन है. नाउ a rational businessman will certainly buy paper pressing machine, but अब ना 70,000 मिलेगा तो businessman क्या परचेस करेगा, paper pressing machine, because it gives a higher return. But in the process of earning of rupees 70,000,
in the process of earning of rupees 70,000, he has to forgo the opportunity of earning rupees 50,000 from the lathe machine. Okay, so 50,000 rupees क्या हुआ उसका opportunity cost. So 50,000 will be opportunity cost. आया समझ में? तो एक बिजनेसमैन था, उसके पास दो ऑप्शन था, वो आइदर लेथ मशीन परचेज कर सकता है या आइदर वो पेपर प्रेसिंग मशीन परचेज कर सकता है ना। उसने एक्सपेक्ट किया कि अगर मैं लेथ मशीन परचेज करूँ तो मुझे 50,000 रुपीज़ मिल सकता है, पेपर प्रेसिंग मशीन परचेज करूँ तो मुझे 70,000 मिल सकता है। सो नेचुरली रैशनल बिजनेसमैन कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेगा? दैट इज परचेज ऑफ पेपर प्रेसिंग मशीन, बिकॉज उसको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। बट इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग ऑफ रुपीज 70,000 उसने सेक्रीफाइस क्या किया? दैट इज 50,000 रुपीज विच ही कैन अर्न फ्रॉम द लेथ मशीन। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज व्हाट? रुपीज 50,000. क्लियर ऑल ऑफ यू? Now, importance of this concept. So, importance of opportunity cost. So, first is what? Determination of relative price of goods. यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसेप्ट से हम लोग क्या डिसाइड कर सकते हैं? डिसाइड कर सकते हैं रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स. ओके, सो एग्जांपल रिलेटिव प्राइस क्या हो सकता है? टेबल एंड चेयर, ये रिलेटिव प्राइस हुआ. ओके, सपोज मैं ऐसा बोलूँ कि फैन एंड टेबल. सो फैन एंड टेबल रिलेटिव गुड्स नहीं है, वो एकदम अनरिलेटेड गुड्स है. ओके, सो रिलेटिव क्या है? दैट इज व्हाट? टेबल एंड चेयर. Simple example. So first importance, the concept of opportunity cost, it is useful in the determination of relative prices of the goods. For example, if given amount of factors can produce one table or three chair, then price of one table tend to be 3 times equal to that of one chair. Simple सा है ना कि suppose given amount of factors. Now given amount of factors यानी suppose land, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब मैंने 10,000 रुपीज़ का यूज़ किया है. 10,000 रुपीज़ का. नाउ ये 10,000 रुपीज़ मेरा कॉस्ट है. नाउ ये 10,000 से मैं आइदर एक टेबल प्रोड्यूस करूँ और 3 चेयर प्रोड्यूस करूँ, कर सकता हूँ ऐसा. ओके, सपोज आई एज अ प्रोड्यूसर्स मैंने क्या सिलेक्ट किया? दैट इज प्रोडक्शन ऑफ वन टेबल. ओके, एंड वन टेबल का प्राइस मैंने डिसाइड कर लिया, दैट इज और वी कैन से चलो चेयर का प्राइस, ये एग्जांपल का अकॉर्डिंगली मैं समझा रहा हूँ. चेयर का प्राइस सपोज एक चेयर का प्राइस 100 है. ओके, तो 3 चेयर का प्राइस कितना हो जाएगा? 300. नाउ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने सेम यूज किया, तो मेरा टेबल का प्राइस कितना होना चाहिए? मेरा टेबल का प्राइस एटलीस्ट 300 तो होना ही चाहिए, बिकॉज 3 चेयर का प्राइस 300 है, तो एक टेबल का प्राइस मिनिमम 300 रुपीज़ तो होना ही चाहिए. सो ये कंसेप्ट से हम लोग क्या डिसाइड कर सकते हैं? रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स. relative price of the goods. So the concept, it is useful in the determination of relative prices of the goods. Clear? Second point, fixation to the remuneration to the factors. Now the concept of opportunity cost, it is useful in fixing the price of factors. Now say example, I as a college professor, मेरा example ले लो. I as a college professor, मेरा दूसरा अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट है इन इंश्योरेंस कंपनी एज एन ऑफिसर्स, और वहाँ पे मुझे 25,000 सैलरी मिल सकती है. ये मेरा अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट है. नाउ अभी कॉलेज को मेरा सैलरी डिसाइड करना है, तो कॉलेज को एटलीस्ट कितना पे करना पड़ेगा? द कॉलेज हैव टू पे एटलीस्ट ₹25,000 टू रिटेन हिम इन द कॉलेज. सपोज कॉलेज मुझे खाली 20,000 देगा, तो मैं तो दूसरी जगह पे जाऊंगा, बिकॉज मुझे तो वहां पे ज़्यादा मिल सकता है ना. ओके, तो ये कंसेप्ट क्या यूजफुल हुआ? डिटरमाइनिंग द और फिक्सिंग द प्राइस ऑफ द फैक्टर्स. ओके, सो यहाँ पे सिंपल से एग्जांपल देखो कि सपोज अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट कॉलेज प्रोफेसर इज वर्क एज एन ऑफिसर्स इन द इंश्योरेंस कंपनी एट अ सैलरी ऑफ ₹25,000 पर मंथ. In such a case, he has to be paid at least ₹25,000 to continue to retain him in the college. Clear? Third,
एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन है डिस्ट्रीब्यूट करना रिसोर्सेज, अच्छे से अच्छा रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इट इज ऑल्सो यूजफुल इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एफिशिएंटली। लेट एन एग्जाम्पल, सपोज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज 3 चेयर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज 3 चेयर। उसका मतलब क्या हुआ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज 3 चेयर मीन्स व्हाट, कि सेम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सपोज मैंने 10,000 रुपीज का यूज किया ना, तो सेम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन प्रोड्यूस आइदर वन टेबल और 3 चेयर, कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज व्हाट, 3 चेयर। नाउ सपोज प्राइस ऑफ अ चेयर इज 100 रुपीज and price of table is 400 rupees. Okay, now a chair का प्राइस, एक चेयर का प्राइस 100 है, तो 3 चेयर का प्राइस कितना बन जाएगा 300, whereas वन टेबल का प्राइस कितना है 400. so it is better to produce one table rather than 3 chair because प्रोडक्शन कॉस्ट सेम है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेम है, और 3 चेयर प्रोड्यूस करेंगे तो 300 रुपीज़ मिलेगा एंड एक चेयर प्रोड्यूस करेंगे तो 400 मिलेगा। इट मीन्स 100 रुपीज़ मोर, 100 रुपीज़ ज़्यादा मिलेगा। सो कहाँ पे रिसोर्स एलोकेट करना चाहिए, इन द प्रोडक्शन ऑफ टेबल। टेबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में आपको रिसोर्स ज़्यादा एलोकेट करना चाहिए। क्लियर? सो दिस कंसेप्ट इट इज़ यूजफुल इन एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नाउ ये कंसेप्ट के सम ऑफ द लिमिटेशंस भी है। सो लिमिटेशन ऑफ दिस कंसेप्ट, फर्स्ट इज व्हाट, द कंसेप्ट डज नॉट अप्लाई ऑन अ स्पेसिफिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। स्पेसिफिक फैक्टर्स यानी इट हैज नो अल्टरनेटिव यूज, इट मीन्स इट हैज ओनली वन यूज और उसके अल्टरनेटिव यूजेस नहीं है। अभी आप ही सोचो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट तो कब यूज होगा, जब उसका अल्टरनेटिव यूज है। ओके, तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अल्टरनेटिव यूजेस नहीं है वो केसेस में द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डज नॉट अप्लाई। ओके, सो द कंसेप्ट डज नॉट अप्लाई ऑन अ स्पेसिफिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो सपोज यहाँ पे एग्जांपल लिया कि फैक्टर्स सच एज रेंट। ओके, नाउ रेंट किसको मिलता है, लैंड। अभी यहाँ पे लैंड का मैंने एक सिंपल स्पेसिफिक यूज किया कि पर्टिकुलर लैंड के ऊपर मैं ना फैक्ट्री बिल्डिंग ही बनाऊंगा, पर्टिकुलर लैंड के ऊपर फैक्ट्री बिल्डिंग बनाना है। एंड फैक्ट्री बिल्डिंग जो बनाया तो लैंड के ऊपर मुझे क्या पे करना है, खाली रेंट। ओके, नाउ ये क्या हुआ उसका स्पेसिफिक यूज। अभी ये जो पर्टिकुलर लैंड है उसके ऊपर मैं फार्मिंग नहीं कर सकता, उसके ऊपर मैं फार्मिंग नहीं कर सकता बिकॉज इट इज व्हाट, स्पेसिफिक यूज, फैक्ट्री बिल्डिंग ही बनाना है। तो जो फैक्टर्स का स्पेसिफिक यूज है वो केसेस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसेप्ट कैलकुलेट नहीं होता है। सो इन दैट केस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी 0. सेकंड पॉइंट, देयर आर सम ऑफ द केसेस वेयर वी कैन नॉट कैलकुलेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ लेबर। ओके, नाउ लेबर के केसेस में हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसेप्ट कैलकुलेट नहीं कर पाते। व्हाई? नाउ जनरल कंसेप्ट क्या है कि कोई भी पर्सन जहां पे ज्यादा रिटर्न मिलता है वहां वो ऑप्शन सिलेक्ट करता है एंड बाकी ऑप्शन को फर्गो करता है, सेक्रीफाइस करता है। ओके, नाउ बट लेबर के केसेस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसेप्ट अपॉर्चुनिटी कंसेप्ट कैलकुलेट नहीं होता है और इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। फॉर एग्जाम्पल लेबर, नाउ लेबर पावर और द वर्कर आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन not only by the amount of wages offered but by other consideration। यानी वर्कर खाली वेजेस को नहीं देखता है बट वर्कर अदर्स फैक्टर्स को भी देखता है। सो वो केसेस में हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसेप्ट कैलकुलेट नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल कि आई एज अ लेबर, मुझे बोला है कि मैं गुजरात में रहता हूँ तो मुझे गुजरात का एटमॉस्फेयर, कल्चर सब अच्छा लग चुका है।
और मैं गुजरात में एज अ प्रोफेसर का जॉब कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे 50,000 रुपीज़ अर्निंग मिल रहा है। नाउ मेरे पास दूसरा अल्टरनेटिव्स है कि आप बॉर्डर पे जाओ, ओके, बॉर्डर पे आपका एक जॉब है, वहाँ पे आपको 1 लाख रुपीज़ सैलरी मिल सकता है, बट वहाँ पे जॉब का सिक्योरिटी नहीं है, लाइफ का सिक्योरिटी नहीं है, स्टेटस नहीं है, कुछ नहीं है। तो आई एज अ वर्कर और आई एज अ लेबर मैंने कौन सा सिलेक्ट किया? गुजरात वाला जॉब, नहीं कि एक बॉर्डर पे जाके जॉब करना। सो वो केसेस में आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसेप्ट कैलकुलेट अच्छे से इजी वे से कैलकुलेट नहीं कर पाते। ओके, सो इन केस ऑफ लेबर पावर इट कैन नॉट कैलकुलेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिकॉज sometime worker are attracted towards a particular occupation not only by the amount of wages offered but by other factor, that is security of job, attitude of superior, job preference, social factors and so on. And third, the concept of opportunity cost, it is subjective or imaginary. Subjective और imaginary यानी it varies from person to person, यानी वो किसके ऊपर डिपेंड है? पर्सन के सोचने के तरीके के ऊपर। ओके, सपोज जो पर्सन को ज़्यादा सैलरी चाहिए था तो वो पर्सन वो बॉर्डर वाला 1 लाख रुपीज़ मिलता है वो जॉब सिलेक्ट करता, बट मैंने सैलरी नहीं देखा, बट मैंने कौन सा देखा? गुजरात वाला जॉब जहाँ पे सेफ्टी है वो देखा। ओके, सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट वो क्या? सब्जेक्टिव है, इमेजिनरी है। इट मीन्स different person will have different estimate of it, so it is not possible to measure properly. And the concept of opportunity cost does not measure properly. So these are the limitations. Okay, so हम लोग यहाँ पे stop करते हैं. So next cost concept we will discuss in the next session. Okay.